dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kaka channel. Dear students, we have discussed our three topics regarding the environmental science, and in our today's lecture, we will be talking about our fourth topic, that is the pollution and types of the pollution, and then we will look into the different resources that how we can understand how the international arena or the international scenarios about the progression in order to control the pollution in the world. So the pollution can be defined as the undesirable changes in the physical, chemical or biological characteristics of air, water and land. ठीक है, जो pollution है, we are talking about in this chapter about the air, water and land, because the environmental science is all about revolve around these three factors, the air, water and land. अब जब एयर, वाटर और लैंड में ही अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, जो गैर मुतवक्के चेंजेस आ जाती हैं इन इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्फीयर्स, ठीक है, जब ये चेंजिंग आ जाती हैं, इट इज कॉल्ड एज द पोल्यूशन एंड दीज आर ब्रॉट अबाउट बाय द नेचुरल एज वेल एज मैन मेड एक्टिविटीज. और ये जो अनडिजायरेबल चेंजेस हैं इन इट्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, they are occurred by natural as well as by man-made activities, thus harmfully affect the living organisms and other resources. ठीक है, अब इस बायोस्फीयर में, एनवायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एनवायरमेंट और एयर, ठीक है, they are all caused just because of the pollutants, and these pollutants have been categorized into four types. The first one is the water pollution, the second is the air pollution, the land pollution and noise pollution. So there are many other types of the pollution as well, but the major pollutants of the environment are these four. So we will be explaining one by one these in detail. So before going further, I just mention one thing, that there are different companies and resources that tell us about the environment protection globally. One is the United Nations Environmental Program, UNEP. It tells us about the environmental situation around the world, and there comes the SDGs. There are 7 SDGs, Sustainable Development Goals, related to environmental protection. We will look into that among 17 SDGs, how many SDGs they are related towards the environmental protection. Then comes the Yale Center for Environmental Law and Policy. It releases every year about the ranking of environmental situation of the countries, called as the Environment Performance Index. ये हर साल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कंट्रीज का रैंक वाइज शो करता है कि भाई कौन सी कंट्री कहां पर लाई करती है, एंड विच कंट्री इज मोर फोकसिंग अबाउट द पॉल्यूशन कंट्रोल. Then comes the Center for International Earth Science Information Network. It also tells about the environmental situation around the world. Then comes the National Clean Policy of Pakistan. National Clean Policy of Pakistan. It tells us about, it was made by the former government in May 2023. ठीक है, ये 2023 में ही रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ने, कि जिसमें कहा गया है कि भाई पाकिस्तान की जितनी भी रिसोर्सेज हैं दैट आर यूज्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड इट आल्सो टेल्स अबाउट द पीपा. The first type of the pollution, that is the water pollution. Water pollution is the changing or modification in physical, chemical or biological properties of water. ठीक है, पानी की कंपोजिशन में आया फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजिंग आना या मॉडिफिकेशन आना is called as the water pollution, and it changes the properties, the natural properties of water. So water pollution occurred by the contamination of water bodies. ठीक है, चाहे वो लेक्स हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, just because of the contamination, आलूदा होना, पानी की जो नेचुरल साख्त है, they get modified or contaminated by these changes. So there occurs different types of water pollution and their primary sources, उसके असरात क्या हैं, एंड इट्स प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स, कि वो कौन से अज्जा है जिसकी वजह से वाटर गेट पोल्यूटेड. फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर दे फॉर्म्ड by the deposits of
एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो प्लांट और एनिमल्स की जो वेस्ट है दे गेट एग्जिस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वाटर। इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनिक मेटेरियल है दे गेट अंडर प्रोसेस बाय द इंडस्ट्रीज, और जो इसका वेस्ट मटेरियल है ऑर्गेनिक मैटर in the shape of organic matter that exists in the drainage of industries, and it affects water in the shape of depletion of oxygen। ठीक है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एज अ रिजल्ट suffocates the aquatic animals। नतीजतन क्या होता है कि जो लेक्स में या रिवर्स में या सी ओशियंस में जहां से ये पानी जाता है उसके अंदर, ठीक है, तो ये गैस जहां पर एक्वेटिक एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं, फिश वगैरह, ठीक है, तो दे गेट सफोकेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। देन कम्स द पैथोजेंस, मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं लाइक सीवेज, फेसिस वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं? डिजीज, डायरिया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, चाइल्डहुड मोर्टेलिटी। ठीक है, जो लोग वो पानी पीते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, सो दे डू नॉट गेट बर्थ टू देयर न्यू वंस जस्ट बिकॉज दे हैव ड्रंक दिस वाटर। ठीक है, तो ये पानी घरों में सप्लाई होता है, ये पानी मुख्तलिफ सोसाइटीज में सप्लाई होती हैं जहां से ये मटेरियल जो पैथोजेंस उसमें बीमारियां होती हैं, और ये बीमारियां वजूहात बनती हैं मुख्तलिफ बैक्टीरियाज और वायरसेस की, जैसे सल्मोनेला, फिकल कॉलीफॉर्म, शिगेला एंड द क्रिप्टोस्पोरिडियम। So these are the bacteria or viruses that get affects water। Then comes the nutrients। वो कौन सी nutrients है जो कि रिलीज होती हैं from the industrial discharge, and it again depletes the concentration of oxygen in water by the overgrowth of algae। एल्गीज की और ग्रोथ हो जाती हैं, और उसकी सफाई ना होने की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स बढ़ते रहते हैं। और ये कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं? या तो नाइट्रेट्स होते हैं या तो फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स formed in the shape of algae, resultantly it affects water। then comes the acid and alkaline। ठीक है, पानी में बहुत सारे एसिड्स और अल्कलाइन रिलीज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बाय दीज इंडस्ट्रीज एज वेल। जो प्राइमरी सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो इंडस्ट्रीज ही हैं जहां से वेस्ट मटेरियल निकलता है, लाइक सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो दीज एसिड्स एंड अल्कलाइन दे एसिडिफाइज वाटर। ठीक है, वाटर एसिडिक हो जाती है, और वो कौन से एसिडिक्स हैं? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड्स। देन कम्स हैवी मेटल्स, दे अगेन रिलीज by the waste of industrial sites which accumulates। These heavy metals accumulates in the tissues of fishes, in the tissues of fish। Resultantly these constituents which are formed or which accumulate in the tissues of fish, they are lead, cadmium, zinc, copper, krypton and mercury। At last there comes the thermal way or the thermal pollution of water। This is the fragmentation of rivers by dams। मुख्तलिफ रिवर्स होती हैं, उनके बीच में से डैम्स बनाए जाते हैं जो कि फ्लो ऑफ वाटर को रोक देते हैं। जब फ्लो ऑफ वाटर रोक देता है, सो देयर अकर्स द चेंजेस इन ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन पानी में चेंज हो जाता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन है बाय द फ्लोइंग वाटर इट आल्सो डिक्रीजेस। और ये हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि जब पानी जा रहा होता है इन मोशन, तो इट्स टेम्परेचर इज इन अ लो लेवल, बट जब पानी को रोका जाता है इन डैम्स मुख्तलिफ एक्विफायर्स में, so its temperature increases। Now come that how to get rid of this water pollution। We have different methods in order to follow। These comes the proper disposal and containment of toxic chemicals which released by the industries। So the industries must need to treat water properly before releasing these waste materials into their drainage, which fills out into oceans and द रिवर्स। जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि मुख्तलिफ केमिकल्स के बाद यूज करके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उनके ड्रेनेज में, सो दे शुड नॉट इंटर इनटू ओशन एंड रिवर्स बिफोर रिलीजिंग दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स। दे शुड ट्रीट that water properly।
देन कम्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, मुख्तलिफ जो थर्मल पावर्स हैं जहां पर ऑयल्स और फ्यूल्स को बर्न करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, सो उनकी जगह हमें हमें क्या चाहिए, वी शुड यूज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड, एयर, हाइड्रो पावर्स, ठीक है, जो दैट वी कैन यूज again and again, like solar powers, solar energy, we can better use these energies rather than to use that energy which can also harm our air in the shape of air pollution and causes as well the water pollution. Then comes do not pour. So this line says about the housing societies where people drain their waste products after eating and washing their edible drinkable utensils, so they just drain their waste products और medications down into pipelines और toilets, ठीक है, जिसकी वजह से वो पानी उनके घरों से, उनके सोसाइटी से निकलकर they again filled itself into the ocean and rivers. Then it says that reverse osmosis, it's a process of osmosis. Osmosis is a process in which the solvent of a solution passes through a semi-permeable membrane from a low concentration solution towards the high concentration. Reverse osmosis is the diffusion process where the solvent or the solute is being filtered by the semi-permeable membrane and exit out only clean water. Then comes the coagulation. Coagulation is a process in which, by the process of statoelectric charges, the water is being treated and the waste products are extracted from the water and only leave the clean water. There comes chlorination. बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हैं जहां पर which the water used for the process in order to take bath, there uses the chlorine in order to purify water from many germs. There comes boiling is a process, ठीक है, पानी के बॉयल किया जाता है तो उसके germs, bacteria and viruses they exit out. Then comes filtration. Filtration is again a process where water gets rid of pollution of polluted materials. Then the purification of tablets, मुख्तलिफ ऐसे tablets और आयोडीन यूज किया जाता है पानी के साथ जिससे पानी को साफ किया जाता है. देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है कि भाई प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन शुड बी रिड्यूस्ड. देखिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होना चाहिए. जब प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा सो पीपल विल नॉट नीड टू पोर इट डाउन नियर द ओशियंस और रिवर्स. वो लोग उसकी जो प्लास्टिक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दे विल नॉट पुट डाउन दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द रिवर्स और ओशियंस, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को भी नुकसान उठाना पड़ता है. वाटर कंजर्वेशन इज अ ग्रेट प्रोसेस, ठीक है, पानी को महफूज करके रखा जाता है इन पाउंड्स, इन मुख्तलिफ बहुत सारी चीजें होती हैं ताकि पानी को कंजर्व किया जाता है इन दी सेफ टैंक्स. Then comes the use of biodegradable detergents. ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं कि जिनसे पानी को प्यूरिफाई किया जाता है. देन एट लास्ट कम्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी और लैंडफिल्स. ठीक है, एक तो प्लास्टिक या वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम होना चाहिए. कम, फिर कहते हैं रीयूज. रीयूज प्लास्टिक्स, रीयूज ऐसे मटेरियल्स जो बार बार उसे यूज किया जाता है और उसे नए चीजें बन जाती हैं. तो बजाय उसके फेंकने की, लैंडफिल बनाने के लिए या उसको रिवर्स या ओशियन में फेंकने की बजाय उसे वापस रीयूज किया जाए ताकि उसे नए प्रोडक्ट्स बन सकें. और जब नए प्रोडक्ट बनते हैं दे कैन बी यूज एज रिसाइकल. ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है ना, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको फेंकने के बजाय, पॉल्यूशन बनाने के बजाय उसे रिसाइकल किया जाए. देन कम्स रिकवरी. और रिसाइकलिंग के बाद हम उसे एनर्जी भी ले सकते हैं in the shape of gas or electricity as well. Then comes recovery. The waste materials or the organic materials which are useful for the living and other materials, they should be recovered. Then landfills, जो ऐसे chemicals या ऐसे material होते हैं
कि जिनसे बंदा दूर नहीं किया जा सकता, तो उनको जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता, जहां पर पॉपुलेशन नहीं होता, एरियाज वेयर पीपल डू नॉट लिव ओवर देयर, सो उनको ऐसे सेफ जगह पर लैंडफिल जमीन के अंदर दबाया जाता है, so that people get rid of this water pollution. Now we look into the second type of the pollution, that's the air pollution. The air pollution occurs just because of the unwanted gases present in the atmosphere, which alters the concentration of nitrogen as well as the ozone layer and the oxygen. जब भी नेचुरल फेज से एयर में pollution extract हो जाता है just because of the man-made or natural ways, so there occurs the air pollution, and these occurred just because of the gases which are dust and fumes. So there are two types of air pollution: the primary pollutants and the secondary pollutants. So these two types of pollutant occurs. देखें, primary pollutants वो होते हैं जो directly pumped into the air, जो air में directly pump हो जाते हैं. They are extracted by the waste materials of the industries like carbon monoxide, sulfur dioxide, the carbon dioxide and nitrogen dioxide. तो ये वो chemicals हैं या वो compounds हैं जो कि extract होते हैं मुख्तलिफ industries से, exhaust of the vehicles, so they get directly into the air. As the resultant, they can secondary pollutants वो होते हैं, which is the second type. They are the resulting compounds. जब ये प्राइमरी कंपाउंड्स, जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करती हैं, they form the photochemical smog. Smog of what? Smog of sulfur trioxide, the sulfuric acid, the nitric acid, the nitrate and sulfate. So these compounds formed as a result of the chemical reaction or the chemical composition reaction of the primary compounds which are extracted by many resources. So there are two causes which causes the air pollution. First one is the stationary source and the second one is the mobile source. Stationary source वो होते हैं जो एक जगह पर वाक़े होते हैं, मौजूद होते हैं, and they only affect a particular region. ठीक है, like for example पावर स्टेशंस हैं जो मतलब जनरेशन, जो एनर्जी की जनरेशन पावर मौजूद हैं in the form of power stations. विल्ड फायर होती है कभी, ठीक है, and the carbon dioxide aid into water, into air. Then comes the volcanic activities like the lava, और ठीक है जो volcanic activity से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हवा में. So these are the stationary sources. और ये जब भी रिलीज होते हैं हवा में, they just pollute a particular region, not whole of the air. एक होती है सेकेंडरी सोर्स या मोबाइल सोर्स. ये वो सोर्सेज होती हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, कार्स, ट्रक्स, ट्रेन, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करती हैं, ट्रेवल करती हैं, और वो उनसे निकलते हुए गैसेस, उनसे निकलते हुए मुख्तलिफ हार्मफुल गैसेस वो मुख्तलिफ एरिया को, ना कि एक जगह को इफेक्ट करती हैं बल्कि बहुत सारी जगहों को. कि कोई एयरप्लेन एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाता है या एक ट्रेन एक जगह से दूसरी तक सफर करता है, तो रास्ते में आने वाली तमाम जितने भी लोकेशंस हैं, इट अफेक्ट्स whole of the year. So then comes many resources like the carbon monoxide, lead, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो they released by the incomplete combustion of organic matter. जब organic matters which are taken from plants, from the waste material of plants and animals, उनकी incomplete combustion की वजह से, ठीक है, ये लिए जाते हैं या वुड से लिए जाते हैं, ऑयल, गैस एंड कोल. ये तमाम वो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल हो जहां से उनकी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है. और यही कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि बाद में इफेक्ट करती हैं ओजोन लेयर को. और इसके असरात क्या होते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स, इनकी क्या रिजल्ट्स दरपेश आते हैं. इट डिक्रीज द ऑक्सीजन, ठीक है, हवा में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उनको कम करती हैं. एज अ रिजल्टेडली उस जगह पर, उस लोकेशन पर जब लोग उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस में मसले पेश आते हैं जिसकी वजह से सर में दर्द, नौजिया होता है, उसको वोमिटिंग आती है, एंड अल्टीमेटली पर्सन गेट्स डेथ, ठीक है. और अगर उनको ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, तो लोग मर भी जाते हैं उस वजह से.
तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी खतरनाक गैस है. देन कम्स द लेड. इट इज आल्सो द एक्सक्रीशन ऑफ एग्जॉस्ट either indoor or outdoor factories and its effects. इसके इफेक्ट क्या है? It impairs the nervous system. इंसान की नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स एंड न्यूरॉन्स वगैरह हैं उनको इफेक्ट करती है just because of the lead. Then comes the nitrogen dioxide. It also taken from the combustion of fossil fuels. ठीक है, जनरेशन कंपनीज जो होती हैं they burn the fossil fuels while resultantly उनसे क्या होता है? irritation in throat and lungs. ठीक है, जो हवा की नलियां होती हैं इंसान की, जानवरों की, तो वहां पर इरिटेशन होती है सांस लेने में. Then comes the sulfur dioxide. It again taken by the burning of coal, while its result in the constriction of airways. जो इंसान की हवा की नली होती है, ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स जिसे कहते हैं, द लंग्स, द ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स, जितनी भी हवा की नलियां होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है, तंग हो जाती हैं, जिनसे हवा का अंदर होना या बाहर जाना, इनहेल एंड एक्सेल, मैन कॉज अ प्रॉब्लम in the airways. Here comes now what are the important factors or what are the important steps to be taken in order to control, in order to reduce the air pollution. So here comes two ways. One is the self-made process which is done by the atmosphere itself. जब एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस जम्प आउट हो जाते हैं या डंप किए जाते हैं which are not natural, like sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, ठीक है, जो कि which changes, alters the concentration of nitrogen as well as of the oxygen, so it naturally disperse those low constituted gases which are hazardous for the atmosphere. वो इधर उधर फेंक देती हैं in order to disperse. There comes the gravitational settling. वो gases जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्री से रिलीज किए गए होते हैं हवा में, वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत से मुख्तलिफ जगहों पर सेटल हो जाते हैं, हवा से दूर हो जाते हैं. देन द एटमॉस्फेयर हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब. ठीक है, कुछ इनमें नेचुरल कैपेबिलिटी है ताकि वो उन गैसेस को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती हैं. देन कम्स द रेन वॉश आउट. ठीक है, जब भी बारिश होती है, जो मुख्तलिफ गैसेस होती हैं जो इंडस्ट्री से रिलीज किए जाते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो वो बारिश होने के बाद वो तमाम गैसेस एटमॉस्फेयर से दूर किए जाते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो जाता है. सो दिस आर द नेचुरल वेज. एक होती है कंट्रोलिंग मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो कि इंसान इनकी मदद से भी हवा को, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, लाइक यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. देखें, आज हर कोई बंदा, हर कोई शख्स के पास अपनी कार है, अपनी मोटर बाइक है, अपनी कोई मीडियम है, सोर्स है फॉर देयर पर्पस ऑफ ट्रेवलिंग. तो बजाय हर शख्स अपनी कार में ट्रेवल करने के बजाय उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए ताकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इन द अर्बन एरियाज स्पेशली, इन ऑर्डर सो दैट लोग ऑफिस जाते हुए, स्कूल यूनिवर्सिटीज जाते हुए, ठीक है, अपने बाजार जाते हुए, कोई भी काम करने के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज करें, ताकि कम से कम जो एयर एग्जॉस्ट हैं ऑफ द कंबशन एयर्स वो कम हो सके. देन है रिसाइकलिंग एंड रीयूज. मुख्तलिफ ऐसे मटेरियल्स हैं जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से रिलीज किए जाते हैं, बजाय उनको रिलीज करने के लिए उनको फिल्टर आउट किया जाए और उनको फिर से यूज किया जाए. ठीक है, नो टू प्लास्टिक बैग्स. ठीक है, मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे लिखा होता है नो टू प्लास्टिक बैग्स. ठीक है, प्लास्टिक बैग के बजाय डिस्पोजल यूज किया करें. ठीक है, विच आर पेपर मेड प्लास्टिक्स. ठीक है, और पेपर मेड बैग्स. तो प्लास्टिक का यूज कम से कम हो जाए ताकि जो प्लास्टिक के जलने से जो सल्फर डाइऑक्साइड या ऐसे हार्मफुल गैसेस हवा में रिलीज किए जाते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके. देन कम्स द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके एंड डिफॉरेस्टेशन को कम करें या तो इंक्रीज प्लांटेशन करें. ठीक है, एक तो फॉरेस्ट को काटना बंद करें. दूसरी बात, अगर कहीं पर इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो उस आग लगने को कंट्रोल करें. ठीक है, सेकेंडली, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्लेसेस पे जो मुख्तलिफ जहां से व्हीकल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वहां पर प्लांटेशन ज्यादा हो. देन कम्स द यूज ऑफ फैन्स इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशंस. देखें,
मॉडर्न ज़माना है और हर कोई एसी में बैठना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं जो गर्म मौसम में हवा की जो एयर कंडीशन की हवा से लुत्फानंदोज हो सकूं, जो लेकिन ये नहीं पता कि उस एयर कंडीशन से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं विद द एग्जॉस्ट इनटू द ईयर, that causes the air pollution. Then comes the useful or the use of renewable source of energy. Instead of using the thermal powers in order to generate the electricity, use renewable sources, the solar energy, wind energy, hydropowers. ठीक है, वो एनर्जी यूज क्या करें जिससे वो एयर पोल्यूशन भी ना हो और वो एनर्जी में यूज करने के लिए दैट गिव्स अ बेटर रिजल्ट टू द ह्यूमन बींग्स. Then comes in modern countries, now they have made certain equipments which are used to reduce these chemicals which are jumped or dumped into the air. जो वेट स्क्रबर्स होते हैं, वेट स्क्रबर्स का काम ये है, they emit the clean air and reduce the sulfur dioxide. ठीक है, ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में लगाए जाते हैं जो उनसे सल्फर डाइऑक्साइड का रिलीज होता है. सो सल्फर डाइऑक्साइड को वो एमिट कर देता है, हवा में नहीं छोड़ता. देन कम्स द साइक्लोन्स. ठीक है, साइक्लोन्स वो होते हैं सेपरेटर्स व्हिच सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स. देन कम्स द बेग हाउसेस व्हिच सेपरेट द डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स भी वही होते हैं जो हवा के मॉइस्चर में से वो डस्ट पार्टिकल्स विच आर हार्मफुल उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. देन कम्स द एयर फिल्टर्स. एयर फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव हैजर्डस पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. देन द इंसिनरेशन प्रोसेस. Incineration is a process which oxidize the harmful gases and remove the harmful gases, only allow the air which are natural. इनको कार्बन एब्जॉर्बर्स भी कहते हैं because they are used in order to absorb carbon dioxide from the air. So then comes the third type of pollution, that is the land pollution. Land pollution occurs just because of the degradation and destruction of earth surface. जब earth की surface की जो natural way of land है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, is called as land pollution. Land pollution are caused because of the solid waste. जो जितना भी solid waste है they extract from the industries, from households, उनको फेंका जाता है जमीन के ऊपर, जमीन की सरफेस के ऊपर. And just because of that filth which has been spreaded on the surface of earth, the earth surface destructed. देखें herbicides, जो मुख्तलिफ herbicide, जो pesticides या insecticides यूज किए जाते हैं in order to get maximum food products from the vegetables, from plants, from trees. जो मुख्तलिफ trees और farmers यूज करते हैं herbicides को instead of insecticides in order to kill the insects which are useful, those insects which are useful in the decomposition of organic matters. So these herbicides help in the killing of that insects. And pesticides also, so the use of these herbicides degrade the natural way of land. Then come the mining activities. देखिए mining activities जो मुख्तलिफ minerals extract किए जाते हैं from the surface of the earth, from the crust of the earth, जिनकी वजह से जो नेचुरल कोर है अर्थ का उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है, वहां पर फिर जहां पर ये माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं वहां पर फिर प्लांटेशन बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है. ठीक है, देन कम द अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द लैंड पोल्यूशन. देखें जो ज्यादा लोग हैं वो दे ट्राई टू लिव इन द अर्बन एरियाज रादर देन दी रूरल एरियाज. तो अर्बनाइजेशन की वजह से ही लैंड पोल्यूशन हो जाता है, वहां पर पानी की कमी हो जाती है, वहां पर मुख्तलिफ वजूहात, वहां पर मुख्तलिफ रीजंस पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से लैंड पोल्यूट हो जाता है. देन कम द इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइज हो गई इन द 17 एंड 18 सेंचुरीज, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैक्सिमम फूड्स, मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए लोगों ने इंडस्ट्रीज लगा दी मुख्तलिफ अर्बन एरियाज में, मुख्तलिफ जगहों पर. जो जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हुई है वहां की जमीन पॉल्यूटेड होती है हमेशा. देन कम्स द न्यूक्लियर वेस्ट. अब जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो ऐसे कंट्रीज जहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं
like the nuclear power plants. Pakistan is also one of them. So ऐसे प्लांट की न्यूक्लियर प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियर एटम्स को, एटम बॉम्ब्स जो होते हैं वहां उसको मेंटेन करने के लिए वहां पर एटॉमिक एक्टिविटीज किए जाते हैं in order to maintain the atomic power of that plant. So उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकलती हैं, फिर उनको ड्रेन आउट कर देते हैं मुख्तलिफ ओशियंस, रिवर्स वगैरह में. Then comes the soil erosion. Soil erosion is a process which removes the natural way of earth surface by deforestation, by making मुख्तलिफ जो सोसाइटीज बनती हैं जहां पर मुख्तलिफ प्लांट्स को निकाल दिए जाते हैं और उनकी जगह एक और चीज आर्टिफिशियल, जैसे मुख्तलिफ शगर बनाना, इसी तरह मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगा देना उस जगह पर जहां पर पहले प्लांट्स मौजूद थे. देन कम्स द लॉ. इसकी क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए, जब इन तमाम वजूहात को हम देखते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलते हैं कि लो ग्राउंड वाटर टेबल की, ठीक है, जो पानी का एक नेचुरल वाटर टेबल है वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से पानी की कमी दरपेश आ जाती है. देन कम्स द फूड इनसिक्योरिटी. ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी इज कॉल्ड एज द बायो मैग्निफिकेशन. फूड इनसिक्योरिटी वो होती हैं जो मुख्तलिफ फूड चेन में एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स दे आर इन्वॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को हम यूज करते हैं. फिर उसी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो हम यूज किए होते हैं, ठीक है, फिर वही फूड हम खाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं, स्किन कैंसर हो जाती है, हमारे रिस्पिरेशन प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. देन कम द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी ऑफ अर्थ. ठीक है, हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, हम एरोजन ऑफ द लैंड करते हैं, जो जमीन की जो एक खूबसूरत साख्त है उसको बिगाड़ दिया जाता है. देन कम द लॉ ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऐसे मुख्तलिफ जगह हैं जो वहां पर पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, पहले ऐसे नेचुरल वे में वहां की हैबिटेट होते थे. either they are birds and the oceans, there were many science has been described that many of the species of fish have been eliminated from the earth, have been extincted nowadays, and there are many biodiversities of any of the species of animals that have been extincted from the world just because of the man-made activities. Then how can we control these pollutions? देखिए, यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, अवॉइड प्लास्टिक डंपिंग ऑन द लैंड, ऑन सरफेस ऑफ लैंड. हम वो प्रोडक्ट्स यूज किया करें जो कि डिकम्पोज हो सकती हो, वो प्रोडक्ट्स जो कि आसानी से डिकम्पोज हो सकती हो. दे आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. रिड्यूस यूज ऑफ हार्बिसाइड्स. जितने भी फार्मर्स यूज करते हैं अपने प्लांट्स में अपने प्रोडक्ट को हायर करने में, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में, उनका यूज कम किया करें, क्योंकि उनसे जो रिजल्ट हमें मुरतब होते हैं दैट अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ एज वेल. देन प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है, रिफॉरेस्टेशन करें. जहां पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है वहां पर गवर्नमेंट एजेंसीज को, वर्ल्ड को ये चाहिए कि भाई वहां पर रिफॉरेस्टेशन करें, मैक्सिमम ट्रीज को प्लांट करें. देन कम्स द अप्लाई साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट. इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे. व्हाट इज द साइंटिफिक वे ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, कि वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है. देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज द नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन अगेन हैव इट्स कॉजेस, इफेक्ट्स एंड इट्स प्रिकॉशंस और इट्स precautionary measures how to avoid these noise pollution. So noise pollution has been caused by the noises of transportation vehicles. ठीक है, जो लाउड स्पीकर की साउंड्स है, मुख्तलिफ ऐसे अनवांटेड साउंड्स होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, एंड दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, इंक्रीज आवर स्ट्रेस, आवर नर्वस सिस्टम, इट डिस्ट्रक्ट्स आवर स्लीप ड्यूरेशन. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी नींद में, देखें, हम ऐसे जगहों पर रहते हैं लाइक कमर्शियल एरियाज जहां पर लोग सोते भी वही हैं अपने फ्लैट्स में, अपनी जगहों पर, और वहां ट्रैफिक के चलने की वजह से उनको रात को भी नींद नहीं आती, एंड इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड occurs heart attacks. So thank you so much for watching. It was all about the pollution.